Okay, fine. So I'm hoping let's start our class for the today from now. Meantime, others will come and join the class. Now, up to day before yesterday, we discussed about up to the question number 10.21, and in the homework I gave you the three questions if I am not wrong. Yes, and I hope that Yes, ma'am. you people have completed your homework. As I am hoping, I am expecting that today I will be completing this exercise, and day after tomorrow, that is on Wednesday, I want everyone's work in a PDF format. Almost everyone's number I have feed it by the name, except the 2 or 3 students. So just send your PDF by tomorrow, by day after tomorrow. And if we finish this all exercise by today, then tomorrow we will be starting the P block elements. Okay. So let's start with the question number 10.22. Now, the question number 10.22 says, why are lithium salts commonly hydrated and those of the other alkali ions usually anhydrous? Now, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि लिथियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं दे आर हाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड का मतलब क्या हो गया? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन देम. बट इन द अदर alkali metals, जो उसके ग्रुप के, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ एनहाइड्रस form. So what is the reason for this? Now I am just going to discuss these questions today because they are the purely theoretical conceptual questions and you need to write down in your own language. So listen very carefully and look what I am here very carefully, and look what I am writing over here. Lithium. When we talk about the lithium, lithium is having the, these all points should be included in your answers. Lithium is what? It is the smallest in size among alkali metals. मतलब कि ये अपने पूरे ग्रुप में इसका साइज जो है वो सबसे छोटा है. Now, when the size of the lithium is the smallest, it means when we talk about the lithium ion, अगर मैं lithium ion की बात करूं तो उसका साइज भी छोटा हो गया. Being smaller in a size, it can polarize water molecule easily. It can polarize the water molecule very easily compare to other alkali metals. Now, due to this polarization, what happens? As a result of which, lithium salts get attached easily to water molecule. Therefore, salts of Li are present in hydrated form. Is it clear to everyone? अब आप लोग लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में. Yes, ma'am. सभी लिख सकते हैं ना? श्योर. देखो अपने आंसर में यू नीड टू इंक्लूड दिस पॉइंट कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है. जब आप सबसे छोटा साइज लिख रहे हो तो यू नीड टू मेंशन दैट सबसे छोटा ये अल्कली मेटल्स में है. ओके. बीइंग स्मॉलर इन साइज, इसका आयन भी छोटा हो गया. अब आयन छोटा होने की वजह से इट कैन पोलराइज द वाटर मॉलिक्यूल very easily compared to the alkali metals, due to which it easily gets attached to the water molecule. Therefore, it is present in a hydrated
form. After this, finishing this answer, ये आंसर पूरा फिनिश करने के बाद नोट एक पॉइंट लिख देना जो आपको हमेशा याद रखना है. As size of ion increases, their polarizing power decreases. Okay, this point you people need to keep in your mind. ये सबसे important point है अगर give reason में question आता है. Clear? Should I move to another page now? Yes, ma'am. Now, the question number 10.23. It says, why is lithium fluoride almost insoluble in water, whereas lithium chloride is soluble not only in water but also in acetone. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जो आपके पास लिथियम क्लोराइड होता है, it is insoluble in water. But if you are going to look the lithium chloride, वो भी lithium का ही salt है. So it is what? It is soluble in water as well as in the acetone. Acetone का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? It is a organic solvent. Okay. Now let's look what is the reason why. We say and this यही bond हो गई ना दोनों के बीच में. Now we are saying that LiCl is what? It is soluble in the water also and as well as in the your acetone also. So reason for this is what? Reason is because of the presence of the ionic character. इसके पास आयोनिक कैरेक्टर है. आयोनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? ये ज्यादा इजीली प्लस और माइनस चार्ज जो है वो लेता है. ओके. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि यहाँ पे भी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन यू नो इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर. पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो किसके पास आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? Which one will have the more ionic character? किसके पास ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर? Fluorine. Lithium chloride. Yes, very good. लिथियम फ्लोराइड के पास ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा. ओके. नाउ वी से यहाँ पे रीजन आपका आता है जो सॉल्युबिलिटी हो गई. सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इन वाटर, it depends on the two factors. What are the factors? It depends on the balance between lattice energy and hydration energy. Now, as we know, your fluoride is small in size. फ्लोराइड्स का साइज छोटा होगा ना, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में ये कैसे आ रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो आपका साइज बढ़ता है. तो फ्लोरीन का साइज कंपेयर टू द क्लोरीन क्या हो गया? छोटा हो गया. सो it is going to be fluorine is smaller in size compared to the chlorine. Therefore, lattice energy of lithium fluoride is greater. हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि छोटा साइज तो अकोमोडेट होगा. Then LiCl and low lattice
energy makes it insoluble in water. ओके और कंपेयर टू द, अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, लिथियम फ्लोराइड और लिथियम क्लोराइड को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो आयोनिक कैरेक्टर तो है, लेकिन इसके पास क्या है, कम आयोनिक कैरेक्टर है, मींस कोवैलेंट कैरेक्टर है। देयरफॉर इट इज व्हाट, इट इज बिकमिंग अ सॉल्युबल इन द वाटर एंड एसीटोन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस आंसर को। यू नीड टू मेंशन कि लिथियम फ्लोराइड जो है वो insoluble in the water and lithium chloride is soluble in the water and acetone because each and every ionic compound have the solubility in water having a balance between the lattice energy and hydration energy. Lattice energy का मतलब होता है कि आपके जो दो एटम्स हैं उनको आप एक साथ लेके आ रहे हो. It depends on that. The energy released in bringing the two ions together to form a lattice. और hydration enthalpy मतलब क्या होता है? The ease of the or the tendency of a compound to become a wet, गीले होने की टेंडेंसी. सो फ्लोराइड का साइज छोटा है, सिमिलरली लिथियम का साइज भी छोटा है, तो इन दोनों को पास लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी की जरूरत है. क्यों? क्योंकि दोनों के साइजेस क्या हो गए, ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो गए. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लैटिस एनर्जी. बिकॉज ऑफ दैट लैटिस एनर्जी वी आर सेइंग कि ये जो है ये इनसॉल्युबल होता है. लिथियम लैटिस एनर्जी जो हो गई वो कम हो गई, therefore it is soluble in the water. यहाँ पे मैंने insoluble लिख दिया. Understood or not? Excuse me, ma'am. मैम मेरे पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही और वीडियो भी नहीं आ रही. Anyone else having problem? Me also. यार मेरी समझ में नहीं आता तुम लोगों के लेक्चर के टाइम में ही क्यों प्रॉब्लम आती है. 12th का लेक्चर और सबके लेक्चर बड़े आराम से चलते हैं. रुको मैं अभी पोजीशन चेंज करती हूँ. I hope now it's okay. Now it's okay? खुशी? नो मैम, मेरे पास तो अभी भी अटक अटक की आवाज आ रही है. Now it's clear for me. Ma'am, it is clear. क्लियर बेटा. ओके खुशी, नाउ लुक योर नेटवर्क नाउ बेटा. ओके अच्छा चलो मुझे अब ये बताओ, दिस आंसर इज क्लियर टू यू, कैसे लिखना है? Ma'am, can you repeat this? ओके बेटा Ma'am, please. सुनो. ओके बेटा लो, ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि लिथियम फ्लोराइड जो है, लिथियम फ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन द वाटर, वेयर एज लिथियम क्लोराइड इज soluble in the water also as well as the acetone also. So always remember कि किसी भी कंपाउंड की, आयोनिक कंपाउंड की solubility जो है वाटर में, it depends on the lattice energy and a hydration energy balance. Lattice energy क्या होता है? When you are bringing the two atoms together, आप दो atoms को जब एक साथ लेके आ रहे हो and they are forming a crystal, at that time a lot of energy is produced. That energy is called as a lattice energy. हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ वेटेबिलिटी. वेटेबिलिटी का मतलब कि आप अगर किसी कंपाउंड को पानी में डाल रहे हो तो वो कितना जल्दी गीला हो रहा है. नाउ फ्लोराइड आयन जो है, फ्लोराइड का साइज जो है वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, isn't it? Similarly, lithium का साइज भी छोटा है. तो we can say because they both are having the comparable sizes, दोनों के साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, तो उन दोनों को एक साथ लाने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए. दैट इज योर लैटिस एनर्जी इज वेरी मच हायर. बट इन द केस ऑफ द लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड में लिथियम का साइज तो छोटा है बट क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया, तो
तो बड़े मॉलिक्यूल में छोटा मॉलिक्यूल हम कंपैरेटिवली इजीली फिट कर सकते हैं। तो एक रीजन तो आपका हो गया ये लैटिस एनर्जी। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ द लिथियम क्लोराइड की कम लैटिस एनर्जी हो गई तो इट इज गेटिंग सॉल्युबलाइज्ड इन द वाटर। नाउ इट इज क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ यस मैम। अब आ रही है आवाज खुशी? हाँ थोड़ी थोड़ी अब सही हो गई। वीडियो नहीं आ रही लेकिन अभी भी मेरे पास। वीडियो तो आनी चाहिए यार, कोई बात नहीं। जैसे मैं अपने घर के बिना- 10:30 का बात। बिना वीडियो के जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे तुम सुनो मुझे आज, ओके? मे भी थोड़ी देर में आ जाए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, मार्क द क्वेश्चन नंबर 24 एज द योर होमवर्क। मार्क क्वेश्चन नंबर 24 एज योर होमवर्क। 10.24 as the homework. Okay. Now coming to the question number 25. Question number 25 says, what happens when? First part says, sodium metal is dropped in water. 10.25. First part. So sodium metal क्या हो गया? Na plus dropped in a water. So what it is going to give? It is going to give you a sodium hydroxide plus hydrogen gas is going to release. अब इसके आगे आप क्या लिखोगे? This is the solid, this is your liquid, this is your aqueous, और इसको मैंने gaseous state में शो किया है। Second says sodium metal is heated in a free supply of oxygen. अब आप क्या कर रहे हो? Heating a sodium metal in a oxygen. So always remember students that whenever you are going to heat any metal in the presence of the oxygen, or you can say in the presence of a air, it is going to form a corresponding oxide. ये corresponding oxide बना देगा। Okay? Third part, it says sodium peroxide dissolve in water. So sodium peroxide क्या है? Na2O2 plus dissolve in water. So it is going to form a 2NaOH plus water. Oh, sorry, hi. Water molecule. Is it clear? Yes, ma'am. Now, coming to the question number 10.26, cut the question number 10.26. Cut that question and come to question number 10.27. Now the question number 10.27 says, state as to why. Means आपको reason देना है. The first part says a solution of sodium carbonate is alkaline. First part क्या कह रहा है कि Na2CO3 का जो solution होता है, it is alkaline in the nature. So what is the reason for it? So always remember, जब भी आप Na2CO3 को you are going to add it in a water, जब भी आप इसको पानी में डालोगे, it undergoes a hydrolysis. अब जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो it forms a sodium carbonate. This sodium carbonate is what? Salt. And you know कि salt क्या होते हैं? They are the neutral in nature. Plus it also forms a NaOH. NaOH क्या है? It is a base in a nature. और ये कौन सा बेस है? It is a very strong basic in a nature. Therefore, your solution of a sodium carbonate is alkaline in the nature. इसके आंसर को रिपीट करूं एक बारी में? You want me to repeat? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन जो है इट इज अल्कलाइन इन द नेचर। ओके, अब अल्कलाइन इन द नेचर का मतलब क्या हो गया कि आप उस सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो। व्हेन यू आर डिसॉल्विंग इट इन अ वाटर एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, आपके पास दो चीजें जो एज अ प्रोडक्ट बन रही हैं। क्या बन रहा है? एक बन रहा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट। सोडियम और कार्बोनेट आयन का ये है। एंड इन द क्लास 10th आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन द नेचर। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NaOH। NaOH क्या है? इट इज अ बेस इन द नेचर। बेस भी कैसा बेस है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेसिक इन अ नेचर। इसे स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कहते हैं? बिकॉज it gets dissociate completely into a Na plus OH minus ion. Therefore, it is a strong basic in a nature. अब आपका एक कंपाउंड तो न्यूट्रल हो गया, मतलब कि वो है या नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और जो दूसरा कंपाउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस इन नेचर, therefore the solution of sodium carbonate is going to be alkaline. अब आया समझ में? Yes, ma'am. Okay. Now, coming to the B part of 10.27. इसका B part. B part says alkali metals are prepared by electrolysis of their fused chlorides. अब सुनो, अगर तुम्हें याद हो तो हमने कल या परसों एक क्वेश्चन किया था, डे बिफोर येस्टरडे और बिफोर दैट वी डिड वन क्वेश्चन कि अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन द नेचर। अब क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू विच दे कैन नॉट be obtained by chemical reduction. ओके, ये रिएक्टिव है इसलिए आप इनको केमिकल रिडक्शन से नहीं ऑब्टेन कर सकते। क्यों? क्योंकि केमिकल रिडक्शन आप किसकी करोगे? ऑक्साइड्स की करोगे। अब जब आप इस मेथड से यू कैन नॉट ऑब्टेन देम, तो वो क्या हो जाएंगे? दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना पॉइंट समझ में आया? मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। अल्कली मेटल्स जो हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन द नेचर, देयरफॉर हम उनके ऑक्साइड्स का केमिकल रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी अल्कली मेटल का ऑक्साइड लोगे तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अब वो जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की तरह एक्ट करेगा तो क्या हो गया? आप उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते हो। देयरफॉर हम ये कहते हैं कि ऑल द अल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन द कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था कि मतलब क्या हो गया? दे आर द मेटालिक इन द नेचर। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू इलेक्ट्रोलाइज देम, आप जब उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट हैपन कि आप मेटल को रिएक्ट कराते हो। हाँ जी बेटा। मैम आपकी वीडियो रुक रुक के आ रही है। वीडियो रुक रुक के आ रही है? थोड़ा वेट करो, लेट्स लुक, इट विल कम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज द वीडियो कम्स व्हाइल स्टॉपिंग। ओके मैम मेरे पास तो आ ही नहीं रही, और आई मतलब मेरी वीडियो आ रही है और मेरा बोर्ड। आपका बोर्ड भी नहीं आ रहा और वीडियो भी नहीं आ रही। हाँ बेटा, माय बोर्ड नहीं मैम, मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे पास नेटवर्क वीक है, आज पूरे दिन से वीक चल रहा है। नहीं, बिकॉज व्हाट हैपन कि कुछ शायद परसों भी जैसे तुम लोगों की कुछ क्लास नहीं हुई थी ना,
देयर इज द नेटवर्क इशू कमिंग बेटा. डू नॉट वरी, मैं इसको अपलोड कर दूंगी अप टू इवनिंग. ओके, अगर ओके चीजें नहीं आ रही मैम. है. नाउ लिसन, alkali, I am repeating again, alkali metals क्या हो गए? Alkali metals are very reactive in nature, जिसकी वजह से you cannot reduce their oxide, क्योंकि अगर आप उनके oxides का chemical reduction कराओगे तो they will act as a strong reducing agent. Now when they are going to act as a strong reducing agent, means what is going to happen? There will be no displacement reaction, किसी भी तरीके की displacement reaction नहीं होगी. Okay, so what we do? Therefore we do the electrolysis by taking a metal. M stands for the metal. अब electrolysis के लिए आपको movable ions भी चाहिए, तो उसके लिए you are going to put the water. अब therefore we can say, therefore it is being obtained by the electrolysis. जो आपका क्वेश्चन कह रहा था, कहाँ गया? Yes, therefore they are prepared by the electrolysis of their fused chlorides. समझ गए बात को? Yes, ma'am. Okay. Now question number इसका C part. C part says sodium is found to be more useful than potassium. अब ये जो बायो वाले स्टूडेंट्स है, they can write this answer very perfectly. मैं इसको सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि आपके पास you have the blood plasma and interstitial fluids. Okay, ये दोनों ही चीजें what they do, they surround the cells. Okay, अब ये cells के चारों तरफ रहती हैं. अगर हम देखें तो सोडियम जो है, सोडियम आयन, Na+ आयन, it is found around these two things. But अगर हम पोटेशियम आयन की बात करें तो it is present in the within the cell fluid. समझे बात को? सोडियम जो है, सोडियम तो बाहर की साइड प्रेजेंट है. ये आपका सेल हो गया, सेल के बाहर सोडियम है और यहाँ सेल के अंदर पोटेशियम है. ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सोडियम आयन जो है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द, सोडियम आयन इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स. ये नर्व के सिग्नल्स को रेगुलेट करता है. अब जब ये रेगुलेट करता है तो व्हाट इज हैपनिंग कि ये आपके, क्योंकि सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो देयर विल बी द फ्लो ऑफ वाटर आल्सो. पानी के फ्लो को भी ये रेगुलेट करेगा, शुगर्स के फ्लो को भी रेगुलेट करेगा, और अमीनो एसिड्स जो हैं वो सेल में जा सके तो उसको भी रेगुलेट करेगा. देयरफॉर वी जस्ट से कि कंपेयर टू द पोटेशियम, जो सोडियम आयन है उसकी फंक्शनिंग ज़्यादा है. देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोडियम आयन इज मोर कंपेयर टू द पोटेशियम आयन. इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर? नॉन बायो स्टूडेंट्स, is that clear beta? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. मैम हमारी बॉडी में सोडियम प्रेजेंट होता है. हाँ, हमारी बॉडी में सोडियम प्रेजेंट होता है. कभी कभी देखा है वो चक्कर आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, नमक चीनी का घोल ही तो पिलाते हैं, बिकॉज देयर इज द इम्बैलेंस इन दैट. जो बॉडी चक्कर आते हैं, एकदम जर्क मारने लग जाती है. तो जर्क क्यों मारती है? क्योंकि आपके जो ब्रेन से आपकी बॉडी तक जो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर नहीं जा रहे. अब वो प्रॉपर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि सोडियम आयन के अंदर डिसबैलेंस हो गया. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Now coming to the next question, that is your 10.28. Question number 10.28 says
Write down the balanced equations for following reactions. First equation है आपकी sodium peroxide plus water. Just now we did this reaction. Balance the equation. 4NaOH plus oxygen. Part 2 says potassium oxide plus water. So it is what? KO2 plus H2O, 2KOH, hydrogen peroxide. मैम आप Plus- जाके आपका बोर्ड आने लगा है क्लियरली. Okay, fine. बोर्ड आना चाहिए बस. Okay. So this is what? This is your potassium oxide. It is going to form a potassium hydroxide. Third equation says sodium oxide and carbon dioxide. Na2O plus carbon dioxide. It is going to give you a Na2CO3. That is your sodium carbonate. Okay. These are the three balanced equations which they have asked us. Next is your question number 10.29. Question number 10.29 says first part, beryllium oxide is insoluble but beryllium sulfate is soluble in water. अब सुनो बच्चों, बेरिलियम आयन ये क्या हो गया कि बहुत छोटा प्लस चार्ज है इसके ऊपर, तो इट इज अ वेरी स्मॉल केटायन. ओके. अब बिकॉज इट इज अ स्मॉल केटायन, therefore it is going to have the high polarizing power. Got it? Now when we talk about the O2 plus, बेरिलियम ऑक्साइड बोला था इसने, O2 plus की अगर हम बात करें तो it is going to be the small anion. अब when it is a small anion or small cation, तो इन दोनों के sizes क्या हो गए? Their sizes have become comparable. दोनों के sizes क्या हो गए? They become comparable, because of which, due to the compare of sizes, they have got the high lattice energy. Okay. Therefore आपका बेरिलियम ऑक्साइड जो है इट इज इनसॉल्युबल इन द वाटर. अब अगर हम इसका साइज तो छोटा ही है, बट इसके साथ दूसरा कौन लगा हुआ है? सल्फेट आयन. सल्फेट आयन इज बिगर एन आयन. इसका साइज क्या है? बड़ा है. अब दोनों का, एक का साइज बड़ा है एक का छोटा है, तो कंपैरेटिवली लेटिस एनर्जी क्या हो गई? वो कम हो गई. देयरफॉर इट्स सॉल्युबिलिटी इज देयर इन द वाटर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. बेरिलियम छोटा केटायन हो गया, ऑक्सीजन छोटा एनायन हो गया, तो दोनों के साइजेस क्या हो गए? कंपेरेबल हो गए. बीइंग देयर साइजेस कंपेरेबल, उनकी पोलराइजिंग पावर क्या हो गई? वो ज़्यादा हो गई, तो उनकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा हो गई. लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से दे आर इनसॉल्युबल इन द वाटर. गॉट इट? क्लियर हुआ ये पॉइंट? इज इट क्लियर? मैम इनसॉल्युबल है. Yes, ma'am. हाँ बेटा, इनसॉल्युबल है. जब हमेशा याद रखना, लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल होगा. लैटिस एनर्जी, मैं फिर से बता रही हूँ, लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिलीज हुई है जब आप केटायन को और एनायन को एक साथ लेकर आए हो. नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. Yes, ma'am. Okay, fine. Now coming with this we finish our part. अब आप देखो आपका होमवर्क क्या है. Your homework is question number 10.24. Question number 10.29 का first part I have discussed.
second and third part you are going to do yourself. अगर problem आती है you can ask to me. Question number 10.30, 31 and 32. These three questions do in book itself. Okay, and up to 29 in a note copy. Got it? Your submission date is day after tomorrow. That is your 8th July. Am I clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta then. Good to all of you. Take care. Thank Thank you, ma'am. Ma'am.